जिसको कोई काम नहीं आता वो एक्टर बनता है, जिसको कोई काम नहीं आता वो डायरेक्टर बनता है. Why are we called भांड्स? I realize that the industry requires education. मैं फेलियर से ज़्यादा सक्सेस से डरता हूँ. ईगो, ये आप बच्चन साहब से या शाहरुख के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो लोग या फेलियर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है लाइफ में? एक टाइम आता था कि जब किसको ना बोलो, और एक टाइम होता था कि कोई तो हाँ बुलवा दे. दोनों हुआ है. सबको लगा था कि बॉबी देओल खत्म हो चुके हैं. लुक एट द वे बॉबी हैज कम बैक, come back. एंड ही हैज कम बैक विद सच ग्रेस. Like how? They call him Lord. Yeah. And I believe method acting is the shittiest piece of acting that you can do. Really? Yes, yes, absolutely. The whole And world talks about it. यार कहाँ यूज किया था हमने मेथड? फाइनली तो ही था ना यार. Hi, this podcast is with the charismatic actor Amit Behel, who's not just a theatre and cinema actor, but he's also a teacher. And of late, he's an amazing connection between government and the creative professionals trying to solve one gap at a time. I hope you like it. Keep floating with the fish. जो मैंने जितना पढ़ा कि आपने इंजीनियरिंग करी, आपने एमबीए किया, थिएटर किया, and then of course the kind of films and the serials and everything that you've been doing. Then I know you from Cinta's tenure, right? Now Creative Council. Honestly, Amit, I haven't seen many people dabbling into different spheres like that and also academics. कितने बच्चों को पढ़ाया. What makes you jump into so many things? And where do you find the time for it? एक डायरी में होता है ना टू डू लिस्ट, Mm. टू अचीव लिस्ट, मैं उसमें डालता हूँ. व्हाट आर द इमीडिएट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स दैट यू नीड टू टैकल फर्स्ट. प्रायोरिटाइज, जो मुझे एमबीए ने और इंजीनियरिंग ने सिखाया. प्रायोरिटाइज योर इश्यूज. बट आई थिंक इट्स ऑल्सो डेलीगेशन. You delegate? आई डेलीगेट. डेलीगेशन के साथ साथ क्रेडिट देना बहुत जरूरी है. तिरस्कार हल्के से करो, तारीफ जोर से करो. I was very fortunate to be brought up by parents. My mother was the head of the department of Hindi at Bounce College Andheri. तो हिंदी साहित्य हमारे मेरे खून में था because of mom. Defense, because of my father being an engineer, plus also having served in the Indian Navy and done the 65 and the 71 wars. Uh, my school was such where I got encouraged to do everything, whether it was sports, whether it was NCC, whether it was elocution, debates, jam, quizzes, everything, you name it. So Bobby Deol, Vikram Bhatt, Ashish Singh used to head Laika, Himalaya, Bhagyashree, they're all my classmates. Uh, Parmeet Sethi is my senior. Sonali Bose, the director, is my senior. Ravina is my junior. Fardeen is my junior. We all went to, Same school. Sunny Paji is my senior, same school. And at that time, engineering and medicine was the only things that was considered respectable. I had to study for my 12th boards. I used to do children's theatre at Prithvi with late Veena Pani Chawla, part of the Little Prithvi Players. Watched all the big greats. So there was an inclination towards theatre. So all the greats in my house like Dharambir Bharti and Harindranath Chattopadhyay and Dr. Rahima Sumrata and Vijay Tendulkar, all these people coming to my house, having discussions with my mom on literature. I joined St. Xavier's in Mumbai. My mom found out. She got my admission cancelled because the HOD of St. Xavier's was her colleague. Parents didn't like my, doing theatre and creative arts as a full-time thing. I was offered the role of Chandragupta Maurya in Dr. Chandraprakash Chanakya. I couldn't do it. Mummy ne kasam khai thi. I was shortlisted for Mamik's role in Jo Jeeta Wo Sikandar. I was shortlisted as the main villain opposite Shah Rukh Khan in a film called Jadoo. Mummy ne wo nahi karne diya, and I came to Delhi to give up acting and started working in a biomedical firm. Then coming to Mumbai, getting rejected by Shyam Benegal, Govind Nilani and David Dhawan on the same day. But getting Shanti, yet working for Blue Star Medical Division as their country head, going to America for training. When Al-Qazi Saab, was the founder director of NSD and who taught people like Nazir Bhai, it was in the year 95 that he caught hold of me. He says, one boat at a time. Otherwise you'll sink. And that's the time when I decided, no, I have to be an actor. I have to be in the field of media and entertainment. This was after Shanti. After Shanti. I'd already got the Best Newcomer Award at that time. I was considered the national heartthrob and यंग था, बाल थे, अच्छी मतलब जैसे होता है.
31 years ago, Sonia. So, it was, I was also counting the time so today yeah, morning. we're talking today. We're recording this on 13th of August, 2025. Yeah. So 15th of August, 1994 was the first episode of Shanti, and I started shooting for it on 8th of March, 2020, 1994. So it's exactly 31 years and a couple of months. I was 14 years old. Yeah. What? Thank you for. So that, but Wow. once I came into the trade, I realized that the industry requires education. So and also it requires, why are we called bhands? Why are we called, जिसको कोई काम नहीं आता वो एक्टर बनता है, जिसको कोई काम नहीं आता वो डायरेक्टर बनता है. People like Late Irfan Khan and Om Puri and now Ali Fazal and why should it only be Kal Pen and Veer Das, the educated actors? People like Madhavan or people like me or people like Manoj Bajpayee or people like Kamal Hassan or people like Nagarjun or people like anybody, I mean, we're talking about Rasul Pukati or Shankar himself or Rajmouli or Bhanu Athaya. I was the general secretary of my college, so that got me into activism for performers. So that's why Sinta. Because I am a management graduate and I had worn many hats because I had already started a production house. I was the founder director of Ashti Vinayak, which is one of the biggest companies who produce films like Golmaal and Jab We Met. I was instrumental in doing those. Wow. So I said I must put all this to use. Mm. Uh, then, because of my position in Sinta, from being joint secretary to senior joint secretary to becoming general secretary, then representing all the actor associations at the International Actors Federation at FIA, then being being the only actor to represent the media entertainment delegation at the ILO in Geneva post COVID, uh, getting a doctorate in media education from Stanford University, an honorary doctorate, and just proving my parents wrong. कि भाई मैं इसी के लिए I was born for this. But yes, my engineering and my management education and life has taught me a lot of things, and um, I like wearing multiple hats, and I am a restless soul, and I believe that because I can wear multiple hats, I attack my characters with that much of honesty, and I that makes me less insecure, and that makes me more honest towards my performance. That also makes me more congenial towards my co-actors. Also makes me more uh, affable towards the people that I deal with. I don't need to delve into petty politics. I can call a spade a spade. Um, I can say no to the role that I don't want to do. मैं अगर किसी डिस्कशन में बैठा हूँ जहाँ पे कुछ राजनीतिक लोग बैठे हैं, हाँ तो ये तो अमित जी हैं और ये तो एक्टर हैं, फिर जब ये लोग कुछ पॉलिटिक्स के बारे में या राजनीति के बारे में या जियो पॉलिटिक्स के बारे में या फिर देश विदेश की इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, तो उनको लगेगा कि मैं सर हिलाता हूँ. मैं सर नहीं हिलाता हूँ, मैं अपना ओपिनियन व्यक्त करता हूँ, मैं अपना वक्तव्य देता हूँ. तो एक शॉक वैल्यू है, और जो रिएक्शन उनका देखता हूँ ना, मुझे एक और कैरेक्टर मिलता. आप बचपन से ऐसे ही हो? बचपन से ऐसा ही हूँ, बचपन से ऐसा ही हूँ. मैं 3 बार बोनीटो क्विज कॉन्टेस्ट जीत चुका हूँ. क्योंकि तो मेरी जो मैं जब तक टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा पढ़ नहीं लेता, पूरा? पूरा 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 टाइम्स ऑफ इंडिया रोज? रोज. जैसे कल रात को मैंने 3 बार होटल के रिसेप्शन को फ़ोन किया, पेपर आया क्या, पेपर आया क्या. फाइनली वो 6:45 आए, बोले सर आज चाय कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि आप फोन आप मत करना, फ़ोन आप मत पेपर कीजिए ले सर, लो। ये लीजिए अखबार. सो मैं हूँ वैसा. आज आप जहाँ पे भी हो, उसमें ज़्यादा फैक्टर ये है कि लक के हिसाब से चीज़ें ठीक होती गई वो, या आपने कुछ मेथड टू द मैडनेस लगाया और वो समझ में आया, वर्कआउट किया? इन ऑल फेयरनेस हमें। Luck has only played about 20% in my life. Uh, व्हाट इज़ 80%? my hard work, my honesty. मैंने मतलब मैं लोगों को फ़ोन नहीं करता हूँ काम के लिए. जो भी काम मिला आज तक, 1-2 लोगों को मैंने शायद कॉल किया होगा. मैंने ऑडिशन दिए हैं, मैंने लुक टेस्ट दिया है, मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया है. रात को 3-3 बजे जाके भी स्क्रीन टेस्ट दिया है. लेकिन सिर्फ़ अपने, और मैं ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मेरी मे मेरे भगवान साक्षी है कि ये मेरा हार्ड वर्क है.
मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, मेरे फैमिली की गुड विशेस है, मेरे दोस्तों की ब्लेसिंग्स है। लेकिन लक ने मेरी लक हैज़ नेवर बीन ऑन माय साइड। तो मैं लक को मानता नहीं हूँ। आई एम वेरी बैड एट कार्ड्स। सोचता हूँ कि मम्मी-पापा ने अगर वही 20, 21, 22 साल की उम्र में अगर मुझे वो करने दिया होता, जो मुझे 26, 27 साल की उम्र में करने मिला, हुँ। वो 5 साल जो मैंने लूज़ किए ना, कभी-कभी ये खला होती है कि वो 5 साल, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, उस 5 साल में मैंने शिक्षण गेन किया, मैंने इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट डिग्री हासिल की, मैंने दुनिया की नॉलेज, मैंने दुनिया ट्रैवल किया। आई ट्रैवल द वर्ल्ड, मतलब मैं आई हैव ट्रैवल्ड 47, 48 कंट्रीज़। तो एज़ एन एक्टर प्लस एज़ एन इंजीनियर, एज़ अ डेलीगेट, तो दुनिया भर का कल्चर देखा मैंने। मैंने मतलब और वो तो एक अलग ही लाइफ़ है। एक अलग ज़िंदगी है, मतलब मैंने सूरीनाम में जाके लोगों से भोजपुरी में बात की। मतलब सूरीनाम अपना बहुत छोटी-सी कंट्री है, क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ बिहार से हैं। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, मैंने सूरीनाम में एक शॉर्ट फ़िल्म शूट की, और वहाँ सब लोग वहाँ पे लोग रवि किशन और मनोज तिवारी को पूछते हैं। सो नाइस। हाँ, तो मतलब अब कितने जो लोगों को यहाँ पे जिस भाषा में इतना नहीं बोल पाते, वहाँ जाके तो बोलिए। कितने लोगों को ये नसीब होता है। आई हैव वर्क्ड हार्ड टू रीच वेयर आई एम, एंड क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए वो हार्ड वर्क की आदत नहीं गई है, और वो हार्ड वर्क की आदत नहीं गई है, इसलिए मैं कंप्लेसेंट नहीं हूँ, और कंप्लेसेंट नहीं हूँ इसलिए नींद नहीं आती। फेलियर से ज़्यादा सक्सेस से डरता हूँ, क्योंकि सक्सेस मेरे सर पर नहीं जाना चाहिए। फेलियर को तो मैं टैकल कर लूँगा, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, सक्सेस ना इंसान के दिमाग को भ्रष्ट करता है। चढ़ जाता है बस दिमाग हाँ, तो वो सक्सेस मतलब एक से वो डर लगता कहावत है। है कि अहंकार मेरे प्रभु जी ना भावे, है ना? आपने फेलियर्स और सक्सेस ये 2 तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे पूरी ज़िंदगी डिस्कशन हो सकता है, सीखने के लिए इतना सब कुछ है। आप इतनी ईज़िली कह गए उस चीज़ को। फेलियर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है लाइफ़ में? बहुत ज़्यादा। अ, सुनिए, 6-6 महीने फ़ोन नहीं बजता था, 6 महीने। 6 महीने। आप आपके हाँ, लाइफ़ में? हाँ, हाँ, और ये 2-3 साल हुआ ऐसा। एक एक टाइम आता था कि जब किसको ना बोलो, हुँ। और एक टाइम होता था कि कोई तो हाँ बुलवा ले, है ना? दोनों हुआ है। दोनों हुआ है। जब एक बार ऐसा हुआ था, 25 साल पहले की बात है, जब नहीं करना तेरा काम, नहीं करना तेरा काम, नहीं करना तेरा काम, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, मैं ओवरवर्क हो गया था, मैं वही रोल्स कर रहा था। हुँ। मैं मुझे जिस चीज़ के लिए मैं इस लाइन में आया था, मुझे उस चीज़ से नफ़रत होने लग गई। पैशन, क्राफ्ट, और फिर 6 महीने बाद कोई तो बुला दो यार शूटिंग। शूटिंग की चाय पीने का मन कर रहा है यार, लाइट के सामने बैठने का मन कर, मेकअप लगाए हुए बहुत दिन हो गए यार, मतलब अब तो आईना भी साथ नहीं दे रहा। सो बट उससे मुझे सीख मिली, क्या? बैड डेज़ के, यू नो, वो एक कहावत ऐसे ही नहीं लिखी है कि टफ टाइम्स डोंट लास्ट, आई मीन टफ पीपल डू, एंड गुड टाइम्स आर वेरी ट्रिवियल, वेरी फ्रिवलस। तो लेट द गुड टाइम्स रोल बोलना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वी आर ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द बैड टाइम। किसी को मालूम नहीं था कि कोविड होने वाला है, क्या? किसी को मालूम नहीं था कि ये 26/11 होगा, हुँ। या मुंबई में फ्लड्स होंगे, या दिल्ली में ऐसा कुछ हो जाएगा, या अक्षरधाम हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा। सो फेलियर टीचेस यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, या है ना? हुँ। मैं मतलब रियलिटी चेक हो जाता हाँ, है। तो वो और उससे एज अ कलाकार, एज एन आर्टिस्ट, नॉट ओनली एज एन एक्टर, एनी क्रिएटिव पर्सन, आप सक्सेस को अब हैंडल कर पाते हैं विद डिग्निटी। जब आती है। मतलब मेरे ही मित्र हैं, सबको लगा था कि बॉबी देओल खत्म हो चुके हैं। लुक एट द वे बॉबी हैज कम It's बैक, come back. एंड ही इज कम बैक विद सच ग्रेस। Like how? और Great. जिस तरह से वो बॉबी जब जाता है, मतलब दे कॉल हिम लॉर्ड, Yeah. है ना? मुझे Amazing. इतना अच्छा लगता है। Yeah. और उस आदमी ने मैं एक ऐसे इंसान को नहीं जानता जो बॉबी के बारे में एक बुरा शब्द बोलेगा। तो आई फील नाइस फॉर सच हुँ। पीपल, और मुझे यकीन है कि लोग मेरे बारे में भी ऐसा सोचते हैं, और एक ऊपर मेरे बारे में किसी ने अच्छा ही सोचा होगा कि जब वो 6 महीने फ़ोन नहीं बजा, उसके बाद मुझे 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिले थे, तो वो जो 6 महीने में जो जितने मैंने पैसे गँवाए थे,
या जितना काम कमाया था, मुझे सडनली मिला। एक ज़िंदगी की एक न्यू लीज ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं ना, वो मिली थी। सो आई हैव सीन दैट। एंड हाउ डिड यू प्रोसेस दैट टाइम? शाम को 6 बजे के बाद जब सूर्यास्त होता था ना, सूर्यास्त वो जो जिसको हम मैजिक आवर कहते हैं, हुँ, उस टाइम थोड़ा डिप्रेशन होता था। वो टाइम वो ऑफ टाइम ऐसा, और जब काम नहीं होता और वो टाइम जब आपके सामने होता है, और स्पेशली समुद्र के किनारे जब सूरज डूब रहा होता है ना, एंड आई विल नॉट लाई, आई डिड गेट सुसाइडल टेंडेंसीज के खत्म करता हूँ यार जिंदगी। लेकिन सम गुड सेंस प्रिवेल्ड, है ना? रुक गए। तो और सक्सेस का तो क्या है कि आज आपके 2 सीरियल हिट हो गए, 2 पिक्चरें हिट हो गई आपकी, फिर कुछ फ्लॉप्स हो गई, हाँ, है ना? और वो और एक सक्सेस होने से हाँ, यू डोंट लास्ट फॉरएवर ना? यू नो, सो मतलब लोग बात कर रहे हैं कि आई मीन शेखर सुमन वाज ऑलवेज अ ग्रेट एक्टर यार, एंड ही डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब इन हीरा मंडी, फाइन। तो शेखर सुमन गायब नहीं थे, वो अपने हिसाब का काम कर रहे थे। हाँ, पीपल, बॉबी वाज रीडिस्कवर्ड बाय आश्रम, बाय एनिमल, तो अच्छा लगता है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। I shaved my hair. I got an international series with Sean Bean. हुँ, Then I got Ashoka. I got Upanishad Ganga. And suddenly there was a new lease of life. एक नया अमित बैल लोगों को नजर आया। तो वो और उन्होंने क्या देख के डिस्कवर किया? इट्स फनी, क्योंकि मैं जब ये लोग यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर्स इंग्लैंड से आए थे, दे वर लुकिंग फॉर कास्टिंग सरदार कैरेक्टर, और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था, और मैं तो सरदार कैरेक्टर में आपको? हाँ, तो उनको दे बिकॉज दे हैड माय अर्लियर फोटोग्राफ्स। हाँ, बाल वाली। बट जॉन हबर्ट जो कास्टिंग डायरेक्टर था, उसने बोला read this script and come tomorrow. अच्छा। And I went and read. That was for an Anglo-Indian character. I was playing the illegitimate child of Pete Pottsville, who's Sir Pete, one of the greatest British actors, हुँ, who was the biggest villain of the Sharp series. And Sean Bean, of course, on Game of Thrones, I या played his assistant for 3 seasons of the show. And I got that character because Pete Postlethwaite was bald. Pete Postlethwaite's illegitimate child was discovered in India, and I speak English with a accent which is not typically an Indian accent or a British accent. And John Hubbard found me to be a decent actor. I got cast. और उसी दौरान मुझे डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्र प्रकाश मिले। अरे प्रभु, ये कब करा है? बोले करा है अभी। फिर उमरशीद गंगा में 52 एपिसोड में 52 अलग अलग रोल किए। उसके बाद अशोका किया, फिर उसके बाद सावित्री किया, तो मतलब एक अलग वैरायटी मिली। आप कैसे प्रिपेयर करते हो अपने आप को कैरेक्टर्स के लिए? हर कैरेक्टर का एक सोनी एक डिफरेंट प्रोसेस भी होता है। हुँ, स्पेशली जब हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का जब प्रोसेस करते हो ना, तो हिस्ट्री में जाना बहुत ज़रूरी हुँ, होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जैसे जब मैंने 3.5 साल स्वराज्य रक्षक संभाजी में जब औरंगज़ेब किया था, तो औरंगज़ेब किस तरह से नमाज़ पढ़ता था, मैंने उसके बारे में किताबें पढ़ी। वो अपनी नमाज़ी टोपी खुद बुनता था। हुँ, वो अलग तरह की दक्कनी और मुगलाई उर्दू उसकी अलग थी थोड़ी-सी। अ, जिहाद में और में उसका जो अटूट विश्वास था, हुँ, वो लाना अपने अंदर। या जब मैं अमात्य राक्षस कर रहा था, तो चाणक्य के प्रति घृणा, हुँ, जो उसका बेस्ट मित्र था, हुँ, वो घृणा लाना, जिसने आपके साथ, आपको लगता है कि जिसने विश्वासघात किया बात आपके साथ। किया, हाँ। क्योंकि आप जब हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करते हैं, आपको वो ऑनेस्टी करनी होती है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल डे कैरेक्टर कर रहे होते हैं, उसमें आपके शेड्स, एक एमबीए बिजनेस मैग्नेट है, टाइकून है, जिसके जो थोड़ा-सा षड्यंत्र करता है, ये करता है, यू कैन प्ले विद इट। बट व्हेन यू आर डीलिंग विद अ हिस्टोरिकल फिगर। और अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हू इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हुँ, तो आपको कुछ ट्रेड्स आपको पढ़ के रखने पड़ते हैं। जैसे आज लोग आज तक याद रखते हैं हुँ, कि नीतीश भारद्वाज ने जो कृष्ण किया था, या अरुण गोविल ने जो राम किया, तो जब मैंने चाणक्य किया, या मैंने अमात्य राक्षस किया, या मैंने औरंगज़ेब किया, तो एक छाप छोड़ने के लिए, हिस्टोरिकल कैरेक्टर पे छाप छोड़ने के लिए आपको भाषा पे पकड़, तलफ़्फ़ुज़ पे पकड़, उस एरिया, उस पीरियड के मैनरिज़म्स पे पकड़। और वो आई थिंक, क्योंकि मैंने क्लासिकल थिएटर किया है, मॉडर्न थिएटर किया है, एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया है,
ये सारी चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, इन सब का मिश्रण मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान कर देती। इवन व्हेन आई परफॉर्म युधिष्ठिर एंड द्रौपदी पासा, जब मैं गुलजार साहब का लिखा हुआ नाटक करता हूँ स्टेज पे, हुँ। तो महाभारत का के पात्र खालिस उर्दू बोलते हैं, वो भी वर्स में। हाँ। तो वो मेरे लिए इतना आसान इसलिए क्योंकि अलकाजी साहब के साथ मैंने क्लासिकल थिएटर किया था उस तरह का। और फिर गुलजार साहब की लाइन्स बोलना तो किसी भी एक्टर के लिए ड्रीम है। और मतलब आई हैव बीन फॉर्च्यूनेट कि उनके लिखे हुए 4 नाटक किए हैं मैंने। तो जब आप तो उसके बाद टू डू अ मॉडर्न कैरेक्टर, मैं मुंबई शहर में पला-बड़ा हूँ। दिल्ली में मैंने इतने साल बिताए, मैंने दुनिया घूमी है। तो फॉर मी टू प्ले एन इंटरनेशनल डॉन या टू बी टॉप नॉच, हाँ, मेरे लिए टफ़ होता है कि जैसे अभी दंगल पे मेरा एक शो था जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला था कि यूपी का बाहुबली है। तो वो मुझे फिर थोड़ा-सा डिक्शन पकड़ना पड़ता था कि थोड़ा रस्टिक बना, और उसका फिर क्योंकि आपके जेस्चर्स थोड़े रस्टिक हो जाते हैं। आपका एटीट्यूड स्पेशली टुवर्ड्स विमेन या आपके सर्वेंट्स या आपके जो हाउस होल्ड है, उसको वो एक कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड हुँ। लाना, तो रफ़ होगा। वो रफनेस लाना हुँ, पड़ता है। हुँ। फिर आप इंस्पिरेशन ढूँढते हैं, फिर आप अपने यार दोस्तों से भी पूछते हैं, फिर आप इर्द-गिर्द देखते हैं, ज़िंदगी से बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या है। सो दिस इज़ हाउ आई डू माय, बट अगर आपके पास नॉलेज है ही नहीं, हुँ, है ना? अ, हुँ, अगर आपने प्यार का एहसास किया ही नहीं, हुँ। या आपको दगा ज़िंदगी में, मतलब नोबडी इज़ डिच्ड यू, कभी धोखा हुआ ही नहीं धोखा है। ही नहीं हुआ आपके हुँ, साथ, तो फिर देन हाउ विल यू एक्सपीरियंस इट? अब वो धोखा भी अलग तरह का होता है। हुँ। दोस्त ने दिया, माँ-बाप ने दिया, गर्लफ्रेंड ने दिया, बीवी ने दिया, बहन ने दिया, भाई ने वो दिया, एक फीलिंग है। एक फीलिंग। हुँ, उस फीलिंग की एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना? हुँ, कि इस वजह से हुआ है। अब वो फीलिंग कहाँ से आई है ना? हुँ, और कहानी के किस मोड़ पर ये फीलिंग आपको लानी है, या कैरेक्टर की ज़िंदगी के किस मकाम पर ये फीलिंग आनी है और किस तरह से आनी है, हुँ। वो आपकी इंटेलिजेंस। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नोइंग जस्ट पीपल। बीइंग एन एक्टर, हुँ, बीइंग अ नॉलेजेबल एक्टर, हुँ, बट बीइंग एन इंटेलिजेंट क्रिएटिव पर्सन। मतलब ऋषि कपूर इज़ सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल। ऋषि कपूर यूनिट के साथ पत्ते खेल रहे होते, हुँ, और उसके बाद उन्होंने जो इमोशनल सीन किया था मुल्क में, हुँ। मेरे सामने उन्होंने वो जिसके लिए उनको अवार्ड मिला था। ही वाज़ प्लेइंग कार्ड्स विद द यूनिट, पत्ते खेल रहे 3 पत्ती, एंड सडनली अनुभव सर ने कहा कि आइए शॉट रेडी है चिंटू जी, एंड ही वेंट एंड डिड दैट। ही वाज़ प्लेइंग द फूल ऑन द सेट विद स्पॉट बॉयज़। और उसके बाद अगर आपको याद है अग्निपथ का जो गाना था जिसमें वो तलवार के साथ जब वो नाचे हाँ, थे, हाँ। ही डिड दैट इन वन रिहर्सल। तो इट्स लाइक ये एंड कट टू बस, शॉट बस। सीधा। आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ सीखना, और ये ज़िंदगी सिखाती, एक्सपीरियंस सिखाता है, कॉन्स्टेंटली डूइंग गुड वर्क। मतलब व्हेन सब आई बिल्डअप होता सब रहता है। बिल्ट अप, ये आपका ये सी दीज़ आर योर वेपन्स। हुँ, ये आपके दीज़ आर, जब मैं मरहूम ओमपुरी साहब को काम करते हुए देखता था, तो ओम जी का ये था। मतलब ही सेड मी काके की हो रहा है इन बैरिटोन, ही शुड टॉक मी, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा, ओम जी शॉट रेडी, इधर लाइन पढ़ ले भाई। सडनली देयर विल बी टीयर्स इन हिज आईज़, ही विल बी डिफरेंट मैन। कट, कट, कट ओम जी, ओके ग्रेट। हाँ, काके मी किया, मैं की कह रहे। दैट वाज़ द ग्रेटनेस, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। मैं इनमें से इम्बाइब होता हूँ। मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज़, एंड आई बिलीव मेथड एक्टिंग इज़ द शिटिएस्ट पीस ऑफ एक्टिंग दैट यू कैन डू। रियली? Yes, yes, द absolutely. होल And वर्ल्ड टॉक्स अबाउट इट। yeah, so if the world talks about it, never can never implicate it. And that's why method acting, method acting, when you talk to people who practice method acting, whether हाँ, it is Stanislavski himself or Meissner, or when Al Pacino or Travolta or De Niro or even Kher Saab or, यार कहाँ यूज़ किया था हमने मेथड? फाइनली तो टेक्नीक ही था ना यार। ट्रैक बैक नहीं हो पाता। नहीं होता। कहाँ? ना, क्या मैं थ्योरी में किसी को रहता है। जान से मारूँगा? हाँ? मतलब क्या मैं, करके देखूँगा क्या? मतलब वो जो एक सीन है हीट में, जब डे निरो और अल पचिनो वो रेस्टोरेंट में बैठे हैं, व्हिच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट ऑस्कर्स, या मतलब अमिताभ बच्चन ने क्या वाक़ई स्टार्टेड फीलिंग लाइक ये हिंदुस्तानी औरत, कम ऑन, दैट्स परफॉर्मिंग, यू हैव टू अपलॉड दैट। ही डिडंट बिकम दैट, ही वाज़ नॉट विजय दीनानाथ चौहान, ही इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ही वाज़ एजुकेटेड इन कोलकाता, हुँ। ही वाज़ प्लेइंग विजय दीनानाथ चौहान फ्रॉम मांडवा व्हिच इज़ नेक्स्ट टू महाराष्ट्र। इसमें एक्टिंग है भाई ये, मेथड क्या है? एक एक्टर फ़िल्म को अपने कंधे पे लेके चल रहा होता है या एक्टर कुछ भी कर ले, अगर वो पूरी टीम सॉलिड नहीं है,
तो वो चीज़ दिख के ही नहीं आएगी वहाँ पे। The team, it's most important, the team. Even though the actor is like Actor could be anybody, the top of the top, the top of the top. And matlab, I don't want to take क्या names गड़बड़ हो सकता है अगर वो एक्टर धुरंधर है एकदम और क्योंकि मीडियम एक्टर का नहीं है, मीडियम राइटर डायरेक्टर का है। राइटर डायरेक्टर का मीडियम है, actor has to follow them and go beyond their imagination and not go against their imagination. आप चाहे कुछ भी हो। RRR का जो वो डांस है, अगर वो राजमौली ने उनको करके दिखाया, उन्होंने अपने इमेजिनेशन से नहीं किया था। तो सिनेमा डायरेक्टर का मीडियम है। हम चाहे मतलब आज भी जब बच्चन साहब को आप सेट पे देखते हैं, यंगेस्ट से यंगेस्ट डायरेक्टर बोली यस सर, ऑर्डर सर। द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। मतलब हम मतलब गुरुदत्त इज गुरुदत्त, Raj Kapoor is Raj Kapoor, Martin Scorsese is Martin Scorsese. They have made the De Niros and the Al Pacinos. Okay, they have Yeah. made the Vaida Rahmans. They have made the Nargisses. Okay, जैसे आदि पोचा हूँ शांति में मतलब फरहान अख्तर और जोया अख्तर असिस्ट कर रहे थे। आदि पोचा मेड एन अमित पहल, एक 4 एपिसोड का एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर, उसने कुछ देखा मेरे में और 4 एपिसोड की जगह मैंने 780 एपिसोड की, सारे अवार्ड लेके गए और आज तक उसकी ब्लेसिंग्स का ही खा रहा हूँ। So it's the director. they make that craft. और आप पढ़ाते भी हो, so you are in touch with lots of youngsters. Yes. So you have seen a time from 1994 being on the floor to being in touch. You're still on the floor, and of course for many years. But you're also working with the young people, and you're very passionate about building teams. Do you think the rules of teamwork have changed? Yes, they have. Um, so the team will still be the same. The what has changed is protocols. Uji Uzuri, sir, Jampana, yes, boss, they have changed. Today, today's kids, the Gen Z will only respect you if you have earned the respect. और मैं बोलता हूँ कि आप में से 30 to 40% ऐसे लोग हैं जो शायद 4-5 साल बाद मुझे काम देंगे। Hmm. So Why not? I better be nice to you. मुझे मजाक में Yeah, बोलता हूँ. yeah. So it's But that's the truth. and that's Why the way not? it works. Yeah. I mean 5th of September को टीचर्स डे को जब सोशल मीडिया पे आई गेट मैसेजेस, जब मुझे व्हाट्सएप पे इमोजीज और बुकेज आते हैं, जब घर पे कार्ड्स और फ्लावर्स और चॉकलेट्स आते हैं ऑन टीचर्स डे, मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ अचीव किया जिंदगी में। दैट्स आई थिंक एंड आई थिंक आई वन ऑल द अवार्ड्स इन टेलीविजन। ऐसा कोई टीवी का अवार्ड नहीं, बट ये जब आता है ना, जब एक स्टूडेंट का बुके आता है या एक That's genuine. यार क्योंकि के ऐसे ही तो कोई क्यों भेजेगा? हम्म, That's है ना, really that's what you've earned. है ना, तो वो ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, तो वो गुरु। और मेरे एक दोस्त हैं जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ था, यू ऑल नो हिम, मुकुल देव। मुकुल यूज्ड टू टेल मी, आई मिस हिम अ लॉट। मुकुल वो द फर्स्ट गाय 20 साल पहले कहता है, भाई तेरे अंदर गुरु है, अगर तूने इस गुरु का इस्तेमाल नहीं किया ना, तू बहुत ही अनसेटिस्फाइड और तू अजीब सी मतलब एक भटकती रूह की जिंदगी जिएगा, एंड दैट्स अ फैक्ट। मुकुल की बात को मैंने जब द डे आई स्टार्टेड टीचिंग, इतना सेटिस्फैक्शन मिला है, एंड आई मिस मुकुल बिकॉज मतलब ही यूज्ड टू लव लिसनिंग टू मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। कहता तू बस बोल, मैं तेरे को सुन रहा हूँ। वी यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ एंड I miss him. I mean, I've lost a lot of good friends who were good listeners, good conversationalists. But that's life, you know. Yeah, They're taken in too much. yeah. मतलब राहुल रवेल आज बता रहे थे कि he believed in, he fought with Rajendra Kumar, he fought with Dharamji, and he made Betab and Love Story the way he wanted to make. And both the films were successful. Yeah. He launched Kajol in Bekhudi, and he just trusted the distributor, and it was a miserable flop. He trusted the distributor and Distributor ending, and he changed the ending. hmm, He didn't go by his own judgment. It वहाँ was a गड़बड़ हो flop. गई. And today he was talking about how Mohit Suri believed in Sayara, and Sayara
is working the way it is. तो आपका कन्विक्शन कितना मैटर करता है, ये मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ कि कभी कभार गलत चीज भी अगर कन्विक्शन से करोगे ना, वो सही नजर आएगी. What's next for you? Well, I've got a Where is series. your heart? My heart is well. Now I want to focus on producing content. I've just produced a show for Hangama. I'm now going to be producing some more content for some other stuff. I'm creating content. I've written a film, which is hopefully going to be greenlit by a big production house. Um, I'm looking forward to acting in some more international work. I'm looking forward to doing my first two Marathi films as an actor because I've done Marathi series. I'm looking forward to my new Kannada film. I'm looking forward to doing a lot of work for the council. I'm looking forward to being on the a professor of practice at 3-4 universities. I'm looking forward. I'm not looking backward. जो होना था, वो ना बीती ताय बिसार आगे की सुख. That is what मैंने I'm. सोचा कोई एक दो चीजें बोलोगे आप. अब तो गलती आप कर दी, रुक गलती कर सकते हो. गलती कर दी, गलती कर ये दी. सारी चीजें आपके इमीडिएट पाइपलाइन में है. मतलब अरे कल करे तो आज कल. अभी आज जाके मुझे जाना है अभी वो एक नई लिट फेस्ट की तैयारी करनी है. उसका जूम कॉल है. देन आई एम गोइंग टू आल्सो थिंकिंग हाउ आई एम गोइंग टू इन्वॉल्व सोनिया ऑन दैट. माइंड इज कॉन्स्टेंटली टिकिंग. अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन भला सबका You हो. are amazing. But thank you very much. Very excited for your students and rooting for your Thank films you. and for whatever else you're doing for media and entertainment because most people don't do it. Thank you so much for having me, sir. अपार्ट फ्रॉम जो एक्टर बनने के लिए अमित ने जितना हार्डवर्क किया है, मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनके बाकी सब वो काम के लिए जो कम्युनिटी के लिए करते हैं, जो कि उनको ज़रूरत नहीं है करने के लिए. लेकिन वो जब वो एज अ टीचर जाते हैं कॉलेजेस में और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वो खाली कोई एक्टिंग नहीं पढ़ा रहे होते हैं, वो एक्चुअली लाइफ पढ़ाते हैं. इसका मुझे खुद को एक्सपीरियंस है. और वो इतनी ऑनेस्टी के साथ समझाते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं कि हर वो इंसान जो शायद कभी कहता हो ना काश मुझे किसी ने गाइड किया होता, आई कैन बेट अपॉन इट कि अमित बहल के जितने स्टूडेंट्स हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे. सो वेरी वेरी इंस्पायरिंग. आई होप इट वॉज फॉर यू एंड आई होप like I have taken up a couple of challenges from that. I hope you do that too. In that continuity, you must watch Prakash Belawadi sir. He's a fine actor based out of Bangalore, works both in the South Indian cinema and in Bollywood. You know, luck ने तो कुछ भी नहीं करके दिया उनको, but he is what he is today. Radhika Iyer, you know, luck gave up on her 2 times cancer. यू नो, बट ना कि उन्होंने सिर्फ अपने कैंसर को बीट किया, बट उन्होंने पूरी एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर दी, ऐसे प्रोडक्ट्स बना लिए, ऐसी लाइफस्टाइल समझ ली, ऐसे हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को समझ लिया और करोड़ों लोगों को समझाती हैं. सो कम्प्लीटली अ रिफॉर्मर, फाउंडर ऑफ अनाहता. प्रशांत गुप्ता, अगेन अ वेरी फाइन एक्टर, नीरजा में आए थे. बहुत ही यंग एज से उनको ऐसा लगा था कि एक्टिंग स्टेज इज़ हिज थिंग, बट डिड लक फेवर हिम? नो, नॉट एट ऑल. टू एन एक्सटेंड कि उनको इंडिया ही उनको छोड़ना पड़ा कि नहीं चीज़ें सॉल्व हो रही थी. बट डिड ही गिव अप ऑन हिज पैशन फॉर एक्टिंग? नो, नॉट एट ऑल. आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल दीज इंस्पायरिंग पीपल ऑन फ्लोटिंग विद अ फिश. Do send us your recommendation, your questions, your suggestions. We love to take care of them. Keep floating with the fish.